गुड मॉर्निंग बच्चों. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. दिस रिजर्व is created out of firm's profit meet to fall in market value of investment. At the time of change in profit ratio, the reserve treated as the follows. First, when the book value and market value of investment is same. In such case, the entire amount of investment fluctuation reserve account debit is transferred to the capital account of partners in their old profit share ratio. The entry is investment fluctuation reserve account debit to partners capital account. Second, when market value of investment is less than the book value. In such case, accounting treatment depend on the quantum of decrease. They may be as follows. Fall in the value is less than investment fluctuation reserve. In such a case, investment fluctuation reserve is to extent of fall in value is credited to investment account and balance is remaining credited to partners capital account in their old profit ratio. Investment fluctuation reserve account debit to investment account to partners capital account. Second है fall in the value is equal to investment fluctuation reserve. In such case, entire amount of investment fluctuation reserve is credited to investment account. This entry is investment fluctuation reserve account debit to investment account. Third है fall in the value is more than investment fluctuation reserve. In such a case, entire amount of investment fluctuation reserve along with the amount of excess fall in the value is credited to investment account. The amount of excess fall is debit to revaluation account because the loss must borne by the partners in their old profit share ratio. The entry is the investment fluctuation reserve account debit, revaluation account debit to investment account. Second, partners capital account debit to revaluation account. Third case है when the market value of investment is more than the book value. In such case, an entry is passed. First, entry amount of investment reserve credited to partners capital account. Investment fluctuation account debit to partners capital account. Increase in the value of investment is debited to investment account and credited to revaluation account. Investment account debit to revaluation account. Third है revaluation account debit to partners capital account. Let's we have see the illustration. PQR share ratio 3:1 decided to the share ratio is equally and their balance sheet is लाइबिलिटी में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 एंड इन्वेस्टमेंट है हमारे 5 लाख से. तो देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस टू फॉलोइंग द अल्टरनेटिव केसेस. फर्स्ट, देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन. जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम उसको टोटली बांट देंगे पार्टनर्स में. तो इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 30,000 को हम उनके ओल्ड रेशियो के में ही बांट देंगे. सेकेंड है इफ द मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख. यहाँ पे 5 लाख हमारी बुक वैल्यू भी है और मार्केट वैल्यू भी है. दैट इज सेम एंड इट्स सेम एंट्री एज द फॉलोइंग केस ऑफ 1. थर्ड केस है इफ द मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000. अब यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस कितना है 12,000 से. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000 क्योंकि 5 लाख माइनस 4 लाख
88,000 और जो भी रिमेनिंग बचती है हमारी 18,000 की वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर फोर्थ केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, मतलब अब हमारे यहाँ पर कितना कम है 54,000 कम है, और जबकि हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है 30,000 का, तो मतलब हमारी यहाँ टोटल डिफिशियंसी हुई 24,000। इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट। अब बाकी जो हमारा जो 24,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 से, और जो भी पार्टनर्स हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 24,000 को अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। अब देखिए फिर कह रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,06,000, मतलब हमारा यहाँ पे 6,000 सरप्लस है या। तो सबसे पहले जो हमारा फ्लक्चुएशन अकाउंट है उसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारा जो सरप्लस हुआ है रिवैल्यूएशन के रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से, फिर है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उनको उसी रेशियो में बांट देंगे। सेकेंड केस है व्हेन द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी ट्रांसफर इनटू द कैपिटल अकाउंट। अब कह रहा है कि उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व तो दिखाता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि बांटेंगे नहीं, इन फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा या। तो ऐसे में फ्यूचर में हमारे पास सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का ही आएगा, उसी अनुसार हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेशन है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म इन देयर रेशियो 4:3, और वहाँ पे जो हमारी जनरल रिजर्व है 35,000 की है, और उन्होंने एक नए पार्टनर्स को एडमिट किया और उन्होंने उसमें उनकी नई रेशियो हो गई 5:3:2। अब यहाँ पे हमको जनरल एंट्री कुछ पास आउट करनी है। फर्स्ट है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब उनको कह रहा है कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो हमारे ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बीज कैपिटल। सेकेंड कह रहा है व्हेन दे नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एनी फॉर द शेम। अब देखिए इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, ए एंड बी की 4:3 है, जबकि इन्होंने नए पार्टनर्स को एडमिट किया तो इनकी रेशियो हो गई 5:3:2। अब हम यहाँ से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेवक जो है न्यू पार्टनर है वह गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे, और बाकी जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी उनके खाते को हम लोग डेबिट। तो आज के लिए इतना ही।